Hello, dear students. Welcome to Physics Bouquet with another topic, that is application of Gauss law to find out electric field intensity due to a charged spherical cell. In previous videos, you can go through the playlists. We have discussed application of Gauss law on charged plane sheet, infinitely long wire, and today we will discuss on charged spherical cell. Charged spherical cell. Suppose this is a charged spherical cell. It is of radius, suppose capital R, and center at O, having radius R. For convenience, let us take it to be positively charged. Charge is distributed uniformly. Charge is uniformly distributed. Suppose we have to find out electric intensity at a point P due to this charged spherical cell. देखो ये जो पॉइंट P है ये चार्ज स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में है. तो as we had done in plane sheet of charge in infinitely long wire, here also we will consider a Gaussian surface. As I have said, for a point charge or for a spherical charge distribution, the Gaussian surface is a sphere. So draw a sphere involving point P with same center O. Suppose this radius is smaller. So this Gaussian surface includes P. Now about this P, consider a small surface of area ds. Now inside this Gaussian surface, this spherical cell lies. Suppose charge distribution is Q. Since it is positively charged, the electric field will be in this direction. It will be away from the charge since it is positively charged. And for this small surface ds, the area vector will be along this outward run normal to the surface. Now we have phi is equal to integration vector E dot vector ds. Here it will be equal to E ds cos 0 degree, because E and ds are along the same direction. Cos 0 degree is 1, so E ds. This is equal to 1.
but our electric field is uniform, so we can bring it outside. Since charge is uniformly distributed and we have considered the Gaussian surface, and we know that the Gaussian surface is that surface within which electric field is uniform. So here electric field is uniform within the Gaussian surface. So E is taken outside the integration sign, and this is ES. Integration of ds is S. So phi is equal to our ES. Then from Gauss law, so this is equation 1. From Gauss law we have phi is equal to Q by epsilon naught. So from 1 and 2 we have Q by epsilon naught is equal to ES, right? Or E is equal to Q by epsilon naught into S. But what is S? S is the area of this whole surface. Its radius is how much? Small r. तो ये स्पेरिकल सरफेस का एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर. सो हमारा S है 4 पाई आर स्क्वायर. इसका रेडियस स्मॉल आर, इसलिए स्मॉल आर स्क्वायर. तो E कितना बनेगा? E इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर. इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं. क्या मिलेगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर. और यू कैन राइट E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. You see, this formula is similar to the formula that due to a point charge. Suppose there is a point charge and we have to find out electric intensity at a distance r. Then our formula becomes E is equal to Q by 4 pi epsilon naught r square. So here the spherical cell behaves like a point charge. That means total charge is concentrated at a point O. So this is the formula for electric intensity at a point P outside the spherical cell. तो हमारा यहाँ R greater than R है. स्पेरिकल सेल का रेडियस से हमारा जो पॉइंट P कंसिडर हुआ है उसका डिस्टेंस स्पेरिकल सेल का रेडियस से ज़्यादा है. तो जब R इज ग्रेटर देन R फॉर ए स्पेरिकल सेल, दिस इज द फॉर्मूला. अभी क्या करते हैं, इसका सरफेस के ऊपर कितना होगा डिस्कस करते हैं. तो फिर से स्पेरिकल सेल ड्रा कर लेते हैं. तो बन गया स्पेरिकल सेल. इसके ऊपर एक पॉइंट P लेते हैं. इसका रेडियस R है. तो क्या होगा? E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होगा. क्योंकि स्मॉल r के लिए हम इतना निकाल चुके हैं. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. इसको ऐसे लिख सकते हैं. मगर हमारा 4 पाई आर स्क्वायर क्या है? ये स्पेरिकल सेल का एरिया है. ये जो स्पेरिकल सेल है इसका एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर. तो हमारा ये क्या बन गया? Q बाय S एप्सिलॉन नॉट. S क्या है? एरिया ऑफ द स्पेरिकल सेल. दिस इज एरिया ऑफ स्पेरिकल सेल.
चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया क्या मिलेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलता है, चार्ज बाय एरिया। सो हमारा Q बाय S है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो E क्या हो गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट which lies on the surface of the spherical cell। स्फेरिकल सेल के ऊपर कोई पॉइंट हम लेंगे और उसके ऊपर उसके वही पॉइंट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे तो इतना आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर क्या? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अब भी क्या करते हैं हम, आउटसाइड में पॉइंट लेके निकालें, सरफेस के ऊपर लिए। अभी क्या करते हैं, एक पॉइंट ये जो स्फेरिकल सेल के अंदर लेते हैं और वहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता है निकालते हैं। तो ये हुआ स्फेरिकल सेल, इसका रेडियस है R, एक पॉइंट P अंदर है, ये सपोज स्मॉल r है, मतलब यहाँ स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। पहले हम जो डिस्कस किए, पहला केस r ग्रेटर देन r लिए, सेकंड केस में सरफेस के ऊपर लिए, अभी r लेस देन r लिए। तो यहाँ एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, गॉसियन सरफेस ये P को इंक्लूड करके लेते हैं। ड्रा करो गॉसियन सरफेस, हो गया। तो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्फेरिकल सेल के ऊपर, ये गॉसियन सरफेस के आउटसाइड है, आउटसाइड है। तो हमारा जो गॉस लॉ यूज होता है, फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये Q क्या है? चार्ज इनसाइड द सरफेस, मतलब ये जो सरफेस लिए हैं उसके अंदर कितना चार्ज है। इसके अंदर कुछ चार्ज है क्या? नहीं है, क्योंकि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके आउटसाइड है, मतलब ये गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब ये Q का वैल्यू 0 है। तो जब R लेस देन R, Q इज इक्वल टू 0, मतलब ये गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है। तो फ्लक्स कितना होगा? 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, 0 होगा। तो हमारा फाई कितना? E डॉट ds 0 है। फिर इसके ऊपर कोई सरफेस लेंगे तो ये E, ये ds सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा ये हो गया E ds इज इक्वल टू 0। फिर क्या हुआ? E ds 0 हुआ, मतलब ये सरफेस एरिया तो 0 नहीं होगा, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? E इज इक्वल टू 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल इज 0। समझ में आए? तो हमारा 3 ठो केसेस डिस्कशन हो गया। पहला वाला, जब R ग्रेटर देन R है, E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। जब R इज इक्वल टू R, हमारा E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट। और जब R लेस देन R होता है
हमारा E इज इक्वल टू 0। तो इसको अभी ग्राफिकली शो करते हैं। सपोज R को x एक्सिस में लेते हैं और E को y एक्सिस में लेते हैं। ये ओरिजिन है। सपोज यहाँ पर R इज इक्वल टू R है। तो जब R इज इक्वल टू R है, E का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सपोज दिस वैल्यू इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये R लेस देन R है, इसमें E का वैल्यू कितना है? 0 है, मतलब E इज 0 अप टू दिस। अप टू दिस E इज 0 एंड हियर इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद जब R ग्रेटर देन R हो रहा है तब क्या है? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर मतलब जब R 0 होता है E इन्फिनिटी होगा, और जब R इन्फिनिटी होगा तब E 0 हो जाए। यहाँ R इन्फिनिटी होने से E 0, R 0 होने से E इन्फिनिटी। तो इसका ग्राफ हो जाएगा कैसा? ऐसा है, राइट। तो यहाँ से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एक ग्राफ है ऐसा। मतलब यहाँ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर और यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द ग्राफ। तो ये गॉस लॉ का जो एप्लीकेशंस है हमने डिस्कस कर लिए। ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन ख़त्म हुआ। ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का वाइटल नेसेसिटी है करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वही नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज का वीडियो में इतना ही। बाय।